الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم ناري كلمة على جاي تدير وأن لقى في النوائب كل همي ولم يستيجري برحمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبدع التهامي سيد الذي سراج المضي وكالدر صاحب مقارب المدينة المدفون بالأرض القديمة الأبد الميسر رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين خاتم النبي سيد المرسلين شفيع المرسلين على سيد المطهر إمام المظفر سراج المظفر أبي شبر وشبر بالغربي ليس مجمالك مظهر العجائب ومظهر الغرائب مفكر والمناطق إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على العادل والغاية بالغاية حق بالحق بالحسنين لابن أبي طالب صل على محمد وآل محمد الفاطمية والعز الحسنية والمشكلات الحسينية والعباد السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم القاسمية والحجج الفردية والوجود الكبرية والشقاوة النقلية والهيبة العسكرية مولانا مولى الصقلين جد الحسن والحسين والقاسم أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أم أبيها اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان ایمان و بزرگان ملت و برادران عزیز و محترم لائق سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار وداع زہرا کے ممخار اور حسین مظلوم کربلا کے سرور، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آج خدا کے فضل و کرم سے اور جہاد معصومین علیہ السلام کی عطا سے اور ہمارے بزرگوں کی حوصلہ افزائی سے انجمن پرچم عباس کی جانب سے یہ الوداعی مجلس ہے، خمسہ مجالس کی آخری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں ممبئی کے سامعین کا، مومنین کا کہ انہوں نے مجھ جیسے ناظرین کو اتنی عزتوں سے نوازا اور مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کو وہ عزتیں دی جو یقیناً قبر تک فراموش نہیں کی جا سکتی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اتنی رات ہو رہی ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بالکل ڈٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑی بیٹھے ہیں کہ یہ بات شامل پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ زہرا کی مجلس ہو رہی ہے۔ قبل اس کے بیان کا آغاز کروں، مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں گے تو یہ وہاں تک جو بڑا سا مجمع موضوع میں کھڑا ہوا ہے وہ بھی آ جائے گا، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا بیٹھے ہوئے۔ ایک بار اور تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قریب آئے چلیں گے، زیادہ دیر سے گفتگو نہیں کرنی ہے۔ ہاں ایک بار صلوات پڑھیے گا بس محمد وعلى محمد۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مجھے احساس ہے آپ کی تھکاوٹوں کا کہ لیکچر بعد دیگر طریقے چل رہی ہیں اور آپ بارہا اسی طریقے سے سماعت فرما رہے ہیں جس طریقے سے سماعت فرمانے کا حق ہے۔ پہلے یہ کلیئر کر دیں تاکہ مجلس کا آغاز کروں، مجھے آواز بالکل صاف آ رہی۔
آج آپ کو تھوڑا زور سے بولنا پڑے گا، بہت اوپر بیٹھ گیا آج تھوڑا سا آج آواز یہ پیچھے والے کو کنفرم کر دیں آج تو دل کو بھروسہ رکھوں کہ پیچھے سے بھی آواز آئے گی، رکھوں بھروسہ تو ایک بار صلوات پڑھیے گا محمد میرے عزیزوں، آج یہ مسئلہ مجالس کی آخری مجلس ہے اور مجھے یوں تو 9 بجے آ جانا تھا ممبر پر، مگر ہمارے مولک صحابی فیروز بھائی کا حکم کہ جو سواری آپ کے لیے جانے کی تھی اس سے اچھی سواری کر کے دوں گا آپ کو، تو یقین مانی آل محمد کے غلاموں کا شرف ہی یہی ہے کہ اگر کوئی کار سے جانا ہو تو یہ شتابدی سے دیکھتے ہیں، اور شتابدی سے جانا ہو تو یہ پلین سے دیکھیں، اور پلین سے جانا ہو تو یہ ہیلی کاپٹر سے بھیجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ایک بار صلوات پڑھیے گا پر محمد بالکل زیادہ دیر کی گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ جو لوگ روزانہ آ رہے ہیں مجلسوں میں ان کو میرا موضوع بالکل یاد ہے کہ موضوع ہے میرا رسول اور بطول۔ بھائی آپ پہلی مجلس میں آئے اور آخری میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو 3 دن کی تھوڑا سا جیکنگ ہوگی، صرف آپ کو جوڑنے کے لیے میں صرف یہ موضوع آپ تک مربوط کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کچھ چہرے ایسے ہیں جو پہلے دن آئے تھے اور پھر آپ ہی کے دن آئے وہ بھی آ جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف موضوع آپ تک پہنچا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم 3 دن تک کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ اللہ کا رسول، اللہ کا طٰہٰ، اللہ کا یاسین، اللہ کا مزمل، اللہ کا مدثر، اللہ کا سراج، جسے اللہ نے بہت ہی اچھی القابوں سے نوازا، کہیں طٰہٰ کہہ کے بلایا، کہیں یاسین کہہ کے بلایا، کہیں مزمل کہہ کے بلایا، کہیں مدثر کہہ کے بلایا، کہیں حبیب کہہ کے بلایا، کہیں محمد کہہ کے بلایا، اتنے اچھی القابوں سے نوازا، اور پھر کہا میرے نبی تو کچھ بولتے ہی نہیں جب تک میں نہ چاہوں، میرے نبی کہتے تھے کہ تو کنکر ہی نہیں اٹھاتا جب تک میری وحی نہ ہو جائے، میرے نبی تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک میں نہیں کہتا، تو سوچتا ہی نہیں جب تک اللہ نہیں کہتا۔ یہ پہلے دن یہ ہوتی۔ دوسرے دن رسول کریم کا ارشاد کہ فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، ٹھیک ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اگر میں رسالت ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، اگر میں نبوت ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، اگر میں محمد ہوں تو محمد کا ٹکڑا، اگر میں مدثر ہوں تو فاطمہ مدثر کا ٹکڑا، اگر میں مزمل ہوں تو فاطمہ مزمل کا ٹکڑا، اگر میں طٰہٰ ہوں تو فاطمہ طٰہٰ کا ٹکڑا، اگر میں یاسین ہوں تو فاطمہ یاسین کا ٹکڑا۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ میں ریحل ہوں، فاطمہ قرآن ہے۔ جو فرمانے ہیں کہ یوں سمجھو کہ میں ریحل ہوں اور فاطمہ، آواز آ رہی ہے بالکل، میں ریحل ہوں اور فاطمہ قرآن ہے، یعنی قرآن ریحل سے جدا نہیں اور ریحل قرآن سے جدا نہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کے اوپر دوسری کتاب نہیں آ سکتی، جب بھی رکھا جائے گا تو قرآن پہ قرآن ہی رکھا جائے گا، قرآن پہ دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی، تو قرآن پہ قرآن ہی رکھا جائے گا۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی ایمان فاطمہ اپنے باپ کی کون ہے؟ تو آج مدد چاہیے آپ کو، فاطمہ کون ہے؟ ماں ہے، کس کی ماں ہے؟ اپنے باپ کی ماں ہے فاطمہ، تو بتا رہے تو فاطمہ محمد کی ماں ہے۔ تو اب ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، اگر آپ بیدار ہیں تو یہیں سے آقا سے مجلس ہو رہی ہے۔ فاطمہ ماں ہے، رسول کی ماں۔ یہ لوگ ہم تو ماں کہیں اور سمجھ رہے تھے، مگر رسول نے بتایا جیسے تم ماں سمجھ رہے ہو، ماں وہ نہیں ہے، ماں وہ ہے جسے رسول کہہ رہا ہے۔ فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب دنیا نے ہم کو اعتراض کیا کہ صاحب یہ جو ہے صرف رسول رسول علی علی کرتے ہیں، یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ جو مردوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے اور عورتوں کو پردے کی زنجیر میں قید کر دیتا ہے؟ یہ اسلام کہتا ہے بھائی کہ جو مردوں کو پردے کی زنجیر میں
عورتوں کو پردے کی زنجیر میں قید کر رہا ہے اور مردوں کو کھلا چھوڑ دے رہا ہے. یہ اسلام ایسا ہے تو سمجھ لو. ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے چوتھی مجلس آج پارٹی سے مربوط کر رہا ہوں. ابھی تک کا یہ صرف خلاصہ پڑھ رہا تھا پہلی سے لے کے چوتھی تک کا کہ ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے کتنے نبی آئے؟ 1,24,000. اور عورتوں کی ہدایت کے لیے اکیلی فاطمہ آ رہے ہیں. ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی آ رہے ہیں اور عورتوں کی ہدایت کے لیے اکیلی فاطمہ آ رہی ہے. پھر بھی دشمن دین منکر اسلام ہم نے تہمت لگا رہا ہے کہ مردوں کا اسلام ہے، یہ عورتوں کا اسلام ہی نہیں ہے. عورتوں کو پردے کی زنجیر میں قید رکھا گیا، مردوں کو کھلا ہوا چھوڑ دیا گیا. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ مردوں کی عزت اور ہو اور عورتوں کی عزت اور ہو. میں نہیں جانتا کہ کس نے کس کے مذہب کو آنا، مگر جس نے ابو طالب کے مذہب کو آنا، جس نے قرآن کے مذہب کو آنا، میں اسے دکھاؤں گا عورتوں کی عزت بھی ہے، عورتوں کا وقار بھی ہے، حقوق بھی ہے. عورت میدان میں نہ رہے، مکان میں رہے. یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا بات پہنچانے کو تھوڑا سا سلوات پڑھیے تھوڑا سا مائک کا ایگو اگر کم ہو جائے آواز تھوڑی سی اگر آواز کم ہو جائے گی تو پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. آواز بہتر آ رہی ہے اور سلوات پڑھیے گا ایک ہی آتی ہے. تھوڑی سی اور چھوٹا کم کر دیں گے. ایک بار اور سلوات پڑھیے گا پر محمد بالکل آواز رہی ہے کیونکہ جب پڑھنے والے کو آواز اچھی ملتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہج بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے. اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھر تک لے کے جائے گا کیونکہ موضوع ہمارا فاطمہ ہے اور کوشش کروں گا کہ موضوع سے نہ ہٹو. جب 4 دن نہیں ہٹا تو ہم تو یوں بھی بن جانا نہیں ہے. 5ویں دن انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کوئی گھر سے گھر نہیں ہوگا. ایک بار سلوات پڑھ دیجیے پر محمد اب آپ توجہ ہے میری طرف. اب جتنا ادھر ادھر دیکھنا تھا دیکھ لے. اب آپ میری طرف توجہ رکھیے گا تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں پہنچانے کی صلاحیت. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے بلایا کہ یہ کیسا مذہب ہے بھائی کہ جو صرف مردوں کو آزادی دیتا ہے عورتوں کو نہیں دیتا. ہم نے کہا قرآن پڑھا جائے، آؤ قرآن پڑھا جائے، قرآن سے پڑھا جائے. قرآن نے کہا ہم مرد اور عورتوں کو برابر دیں گے. جو حق ہے وہ برابر دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ مردوں کو الگ دیا جائے عورتوں کو الگ دیا جائے گا. کا مطلب لوگوں نے کہا بھائی یہ کیسا مذہب ہے جو مسلمانوں میں اسلام میں عورتوں کو حقوق دباتا ہے اور مردوں کے حقوق کو بڑھاتا ہے. ایسا نہیں ہے. میں نہیں جانتا کہ قرآن سے ہٹ کر جو اسلام ہے ان کے یہاں عورتوں کا کیا قانون ہے، مکان میں رہتی ہے یا میدان میں آتی ہے. اگر جو قرآن کا اسلام ہے مجھے معلوم ہے کہ عورتوں کی بھی عزت کیا ہے. اگر خدا کی قسم ہمارے یہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی تو قرآن مجید میں سورہ رجل ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا. قرآن مجید میں اگر مردوں کی عزت ہوتی اور عورتوں کی عزت نہ ہوتی تو سورہ رجل ہوتا، سورہ مریم نہ ہوتا. حالانکہ قرآن مجید میں سورہ رجل نہیں ہے، سورہ مریم ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ جو عورتیں اچھی تھی اللہ نے اچھے سے ذکر کیا اور جو بری عورتیں تھی ان کا بری طریقے سے ذکر کیا گیا. مریم اچھی تھی قرآن میں اچھے طریقے سے ذکر ہوا. سارا اچھی تھی اچھے طریقے سے ذکر ہوا. جو فرما رہے ہیں ہوا اچھی تھی اچھے طریقے سے ذکر ہوا. مگر جو بیوی غلط تھی آج آپ کو ڈبل بولنا ہے، میں بہت بلندی پہ بیٹھا ہوا ہوں. جو بیوی غلط تھی اس کا دوسرے
طریقے سے ذکر ہوا تو بھیا عجیب و غریب بات ہے کہ محمد کے کہنے کے مان رہے ہیں کہ محمد ہے. یہ قرآن کس نے دیا؟ بھائی تھوڑا جوڑیے گا مجھے. قرآن کس نے دیا؟ محمد نے دیا. بھیا یہ بتاؤ کہ جنت کس نے دی؟ محمد نے. یہ فرشتے کس نے بتایا تھا؟ محمد نے. یہ سلسبیل کس نے بتایا تھا؟ محمد نے. یہ عمرے کس نے بتائی تھا؟ محمد نے. یہ جنت کس نے بتایا تھا؟ محمد نے. یہ جبرائیل کس نے بتایا تھا؟ محمد نے. یہ میکائیل کس نے بتایا تھا؟ محمد نے. یہ اسرافیل کس نے بتایا تھا؟ محمد نے. یہ ملک الموت کس نے بتایا تھا؟ محمد نے. یہ سلسبیل کس نے بتایا تھا؟ محمد نے. یہ آسمان کس نے بتایا تھا؟ محمد نے. تصاویر آسمان ہے کیوں آنا کا محمد نے بتایا تھا. سلسبیل کیوں آنا کا محمد نے بتایا. شریر کو کیوں آنا کا محمد نے بتایا. جنت کو کیوں آنا کا محمد نے بتایا. دوزخ کو کیوں آنا کا محمد نے بتایا. تو سوال کروں بھولے کھڑو ہزاروں. اب یہ بتاؤ کہ محمد نے بتایا ہے یا دکھایا؟ اب یہ بتاؤ محمد نے بتایا یا دکھایا؟ تو ہر سچا مسلمان رہے گا. ہر سچا مسلمان کہے گا کہ محمد نے بتایا ہے دکھایا نہیں. تو بھیا مانا کیوں کا؟ مانا اس لیے کہ محمد نے بتایا. تو ارے ابو جہل کی جاہل اولادوں تمہیں کیا ہو گیا؟ جسے نبی نے بتایا اسے تو مانا اور جسے غدیر کے میدان میں دکھایا. اگر آج غدیر نہ پڑھا تو کبھی نہ پڑھ پاؤں گا. اور اتنے کھلے میدان میں اگر غدیر نہ پڑھ پایا آمادہ ہے. جب غدیر کے بغیر محمد کی رسالت نہ قبول ہوئی تو غدیر کے بغیر اجمل پرچم عباس کا خمسہ ہو جائے گا. تو جو فرمائے غدیری میرے سامنے بیٹھے میدان سنو. وہ غدیر اور تھا, یہ غدیر اور ہے. وہاں اتنا گرم تھا کہ پاؤں کے نیچے بھی گرمی تھی, سر کے اوپر بھی گرمی تھی. پروفیسر ایبلسن صاحب نے کہا تھا ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. دوست بول رہا ہے آپ کو. ایک تو شدت دھوپ میں تھی, دوسری اعلان میں. دونوں رخ سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں. آج تو ذرا زور سے یاد ہی بولو. اگر آج بھی سوچ ہو کے بیٹھو گے تو پھر کبھی نہیں بول پاؤ گے. میرے ساتھ نعرہ لگاؤ. نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سلام پڑھو پر محمد والے. جسے نبی نے بتایا اسے تو مانا. جسے نبی نے دکھایا تو بھیا یہ بتایا تو مانا کیوں, اور یہ دکھایا تو مانا کیوں نہیں؟ تو فرما رہے ایک نبی نے یہ بھی دیا ہے. قربانی کے لیے شرط ہے پیسہ نہ ہو تو لے کے کرو, مگر قربانی تو کیا. کبھی بکرے کی وصیت پڑی؟ حسین کے چاہنے والوں قربانی تو خوب کیا نا. اس کا 50 کا بکرا ہے تو میرا 70 کا ہو. لعنت ہو ایسے بکرے پر. کہنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, جس میں کمپٹیشن والا بکرا ہو یہ لعنت ہے نا. اللہ نیت دیکھتا ہے, اللہ بکرا تھوڑی دیکھتا کس کا کتنا تندرست ہے. اللہ یہ تھوڑی دیکھتا کہ بکرے کا پیٹ کتنا بڑا ہے. اللہ یہ تھوڑی دیکھتا کہ بکرے کا کان کتنا بڑا ہے. اللہ یہ تھوڑی دیکھتا کہ بکرے کی گردن کتنی بڑی. اللہ دیکھتا ہے کہ کرنے والے کی نیت کتنی بڑی ہے. اللہ ڈیپینڈ کرتا ہے, دیکھتا ہے نیتوں پر. اور ہم دیکھ رہے ہیں پڑوسی کا بکرا, ان کا بکرا وہ 1 لاکھ کا ہے تو 2 لاکھ کا آئے گا. ہمیشہ قربانی کی, مگر کیا قربانی کرتے ہوئے کبھی بکرے کی وصیت پڑھی؟ آج پڑھوں گا وصیت, اجازت ہے؟ بکرے کی وصیت کبھی پڑھی؟
نہیں پڑی، قربانی خوب کیا، مگر بکرے نے بے زبانی میں دیکھ کے کہا ہمیں قربان کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی راہ میں نا، تو مجھے قربان کرنے سے پہلے اپنے غرور کی قربانی کرو، اپنے گھمنڈ کی قربانی کرو، اپنے انا کی قربانی کرو. ایسا نہ ہو کہ مجھے قربان تو تم کر دو مگر ایسا نہ ہو کہ فریزر میں رکھ رکھ کے مجھے مت کھانا. قربانی کرو مگر مجھے فریزر میں رکھ کے مت کھانا، اور کوشش کرنا کہ جو تمہیں پسند ہو وہ دینا. ایسا نہیں ہو کہ ہم تو نہیں کھاتے سینے کا گوشت تو پڑوسی کو دے دو، ٹانگ نہیں کھاتے اور جو کھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ فریزر میں رکھ لو. تو کوشش کرو جو تمہیں پسند ہو وہ دو، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ بھی جناب محمد کا دیا ہوا ہے. تو سلطان کا یہ اجازت ہے ایک جملہ کہوں. بھائی مسلمانوں نے اسے تو مانا، اسے مانا تو اسے کیوں نہیں مانا؟ تو بھائی سوال کا جواب مجھے وہی مل گیا کہ اسے ماننے کے لیے حلالی ہونا شرط نہیں ہے، مگر اسے ماننے کے لیے تھوڑا سا ٹائم پڑھاؤ. نعرہ حیدری، زور سے علی کہو کہ جتنے حرام کے علی کے کھانے والے بیٹھے اور گاتے کے دیا ہوتا ہے سب پہلے ہو جائیں. اور اتنی زور سے تو کم سے کم آج علی کہو نعرہ حیدری. تو پھر اسے ماننے کے لیے حلالی ہونا شرط نہیں ہے، مگر اسے ماننے کے لیے شرط. بھائی ہر کوئی علی کو تھوڑی مان سکتا ہے. علی کوئی اماں کے تابع کی روٹی تھوڑی ہے ہر بھوکے بیٹے کو مل جائے. یہ علی ہے میاں، سب کو نہیں ملنے والا ہے. اب عورتوں کو پردے میں لے کر لوگوں نے آپ کو کیسے بہکایا یاد رکھیے گا. آج صرف موضوع ہے میرا عورت، ٹھیک ہے؟ فاطمہ کیسے بہکایا پتا ہے؟ کہیں کیسا مذہب ہے بھائی جو مردوں کو کھلا چھوڑتا ہے اور عورت کو پردے کی زنجیر میں قید رکھتا ہے؟ تو میں نے دکھایا نا، اگر مذہب صرف مردوں کا ہوتا تو قرآن مجید میں سورہ رجل ہوتا. سورہ مریم ہے، سورہ رجل ٹھیک ہے، آمادہ ہے نا. سورہ مریم ہے، سورہ رجل نہیں ہے. کبھی کا اللہ نے کہا یاد رکھنا ہم زوجیت پہ عزت نہیں دیں گے، پھر ہم اہلیت پہ عزت دیں گے. کچھ قانون ہم نے مردوں کے لیے بنائے، کچھ قانون ہم نے عورتوں کے لیے نہیں بنائے. قانون مرد کیا ہے؟ قانون مرد یہ ہے کہ جب مرد روڈ پہ چلے تو نگاہ بھی جھکا کے چلے، گردن بھی جھکا کے چلے، مگر جب عورت روڈ پہ چلے تو سر کو بھی جھکا کے چلے، نگاہوں کو بھی جھکا کے چلے. قانون مرد یہ ہے کہ جب روڈ پہ چلے تو خاتون بھی آگے آگے چلے. خاتون کے لیے عزت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے چلے. ہم نے مرد کے لیے قانون یہ بنایا کہ مرد عورت کی عزت کرے، عورت کے لیے قانون یہ بنایا کہ وہ مرد کی عزت کرے. ہم نے مرد کے لیے قانون بنایا کہ وہ عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے. ہم نے عورت کے لیے قانون بنایا کہ وہ مرد پہ ہاتھ نہ اٹھائے. اب آواز آئے تو چناؤ کرو. ہم نے قانون اسلام یہ بنایا کہ مرد میدان جہاد سے بھاگنے نہ پائے، عورت میدان جہاد میں آگے نہ پائے. پیغمبر نے امامت لے لی، زندہ باد اور آپ کو سلامت رکھے. دوست میں اپنے پیغمبر نے امامت لے لی، اپنی آغوش میں زہرا نے شریعت لے لی. دوست میں اپنے پیغمبر نے امامت لے لی، اپنی آغوش میں زہرا نے شریعت لے لی. لوگ سرکار کے پہلو میں بھی بیکار رہے، لوگ سرکار کے پہلو میں بھی بیکار رہے. ان کے اشار نے مطلب ہے میں جنت لے لی. اور آپ کو سلامت رکھے. حوصلہ افزائی کی ہے آپ نے. غدیر کے میدان میں ایسوں کی بھی ضرورت تھی.
हाँ हाँ खुदा की कसम, वरना ये कैमरा आज है ना, अगर गदीर में होता तो आपको दिखाता कि कुछ लोग पंजों के बल भी खड़े थे। अभी आऊंगा मौजूद पर इंशाअल्लाह ताला। आज की मजलिस आप घरों तक लेके जाएंगे, पूरी चैलेंज से कह रहा हूँ, मगर नसीहत भी होगी, तबलीग भी होगी, फजाइल भी होगा। भैया तवज्जो फरमाया, हमने कानून बनाया कि मर्द मैदान जिहाद से भागने ना पाए और औरत मैदान जिहाद में तो इजाजत है एक जुमला कहूँ, मर्द मैदान से भागा तो मर्द ना रहा। अल्लाह जाने आप कहाँ हैं। भैया मर्द मैदान से भागा तो मर्द ना रहा, औरत मैदान में आ गई तो औरत ना रही। अब एक जुमला मैं कर रहा हूँ, हमसे ज्यादा औरत को कौन मानेगा? तो मैं कहता हूँ ये कौम जो है वो औरत को नहीं मानते, रसूल की बीवी को नहीं मानते, नबी की बीवी पे उंगली उठाते हैं। नबी की बीवी समझ रहे हैं, नू की बीवी क्या कर रहे हो? जनाब जल्दी से आपको बचा के मैं चलता हूँ। मैं जनाब नू की बीवी की बात कर रहा हूँ। मुद्रा वालों बताओ मुझे, नू की बीवी खराब औरत थी कि नहीं? बोलिए, कैमरे की मौजूदगी में है, खराब औरत थी ना? थी ना? वो बहकी भी थी, क्या कहने का बहका भी रही थी, घूम घूम के बहका रही थी, दरवाजे दरवाजे जा जा के बहका रही थी। हाय हाय हाय, मैं कुछ कह रहा हूँ, वो बहकी भी थी, बहका भी रही थी, मगर हमारे कानून परवरदिगार अल्लाह ने बेटे को बार बार बुलाया, बीवी को एक बार भी न बुलाया। महबूब ये क्या, बेटा तो कश्ती में बार बार बुलाया जाए, बीवी एक बार भी न बुलाई जाए। का कानून मशरियत ये है कि हम बहकने वाले को तो माफ करेंगे, बहकाने वाले को माफ नहीं करेंगे। हम बहकने वाले को तो मौका देंगे, मगर बहकाने वाले को मौका नहीं देंगे। अब लोगों ने कहा साहब ये औरत को नहीं मानते, औरत की इज्जत नहीं करते। हम ज़ौजियत पे इज्जत नहीं करते, हम अहलियत पे इज्जत करते हैं। अब पीछे वाला बताओ, मैं वो दलील दूं? इजाजत है दलील दूं आपके सामने कि हम ज़ौजा को नहीं मानते, हम औरत की इज्जत नहीं करते। अरे बेवकूफो, हमसे ज्यादा कौन करेगा? हम ज़ौजियत नहीं देखते, हम अहलियत देखते हैं, हम किरदार देखते हैं, हम कैरेक्टर देखते हैं कि इज्जत करने के लायक भी है कि नहीं। औरत हो और अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तब भी सलाम के लायक है। नबी के घर में हो तब भी सलाम के लायक है। बीबी ज़हरा के दुश्मनों पर थोड़ा मेरा बात बताओ, ठीक है? हम अहलियत मानते हैं या ज़ौजियत थोड़ी मानते। अगर औरत अच्छी हो और फिरौन के घर में हो तभी अल्लाह आसिया को सलाम कहलाता है। और औरत बुरी हो और नबी के घर में हो तब भी अल्लाह लानत करवाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नू की बीवी को बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, पढ़ वही रहा हूँ। हाँ कनेक्शन बिल्कुल एक है, ठंडा तार गर्म तार का बिल्कुल कनेक्शन है, अगर मेरी मौजूदगी है। मैं पढ़ किसको रहा हूँ? नू की बीवी को। कोई बात ना करेगा, तवज्जो फरमाइएगा। हम कैरेक्टर देखते हैं भैया, इज्जत देखते हैं। मामला ये हुआ कि औरतों की इज्जत नहीं है, औरतों की इज्जत नहीं है, मर्दों को पर्दे की में छोड़ दिया गया है, औरत को पर्दे की जंजीर में कैद रख दिया गया है। माफ करना, ये इस्लाम है, नगर नियम थोड़ी है। खुला हुआ सांप छोड़ दे जहाँ चाहे वहां से मारे, ये इस्लाम है भैया। इस्लाम बताता है जब रोड पे चलो तो निगाह भी झुका के चलो, जब रोड पे चलो तो गर्दन भी झुका के चलो। किसी ने मौला देखा, मौला क्यों? फरमाया निगाह इसलिए झुका के चलो ताकि पता चले शरीफ खून दौड़ रहा है, और गर्दन झुका के इसलिए चलो ताकि पता चले माँ भी शरीफ है, बाप भी शरीफ है। अरे जुमला कहूँ मौला का बहुत बड़ा, एक जुमला अली का पढ़ूंगा और एक जुमला बतूल का पढ़ूंगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। कायनात का अमीर मिंबर
ने ये जुमला कहा, पीछे से एक आदमी आया, मौला बांट चुके थे? हाँ बांट चुका है। मौला सोच लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, बांट चुके? अगर मस्जिद का इमाम होता ना तो बदल जाता, मगर कायनात का इमाम था, बदला नहीं, क्योंकि सामने वाले का सवाल नहीं बदलता, अली के देने का खैरात बदलता है। अरे मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, सामने वाले के सवालात नहीं बदलते, अली के देने का खैरात बदलता है। उसने कहा मौला दे चुके। अब एक जुमला कहूँ, अगर रूह की वादियों में गुलाब न खिला तो फिर मेरे यहाँ आने का कोई फायदा न हुआ। मौला ने मुस्कुरा के कहा मैं उस जानवर को भी दे चुका। क्या चाहिए ये दूर तक खड़े रहने वाले भाइयों, आपको नंबरदार बना रहा हूँ, जितने बाहर तक खड़े हुए भैया। पूछने वाले का मौला दे चुके का, मैं दे चुका का, मौला दे चुके का, कसम खुदा की जिसने अली को बनाया। हाय 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 हाय, कसम खुदा की जिसने अली को बनाया, मैं उसे भी दे चुका जिसे तू बंद बोतल में चींटी लेकर आया है। मैं उसे भी दे चुका जिसे तू नहीं जानता कौन कितने देर बोलेगा, जिसे तू बंद बोतल में चींटी को लेकर आया है। उसने कहा मौला उसे भी दे चुके, कभी तू चींटी लेकर आया है। अली तो ये भी जानता है कि चींटी न है या मादा, तू लेकर आया है। अली तो उसे भी जानता है कि चींटी नर है या मादा, चींटी नर है या मादा, चींटी नर है या मादा। जब वो देखा, देख के चला गया, मुतमईन हुआ, अली के कदमों का पोसा दिया, देकर चला गया। सलमान ने कहा मौला क्या रिस्क की बातें थे, अली रिस्क बांट रहा था, मौला बांट चुके का, मैं बांट चुका। बस बात करते करते सहरा की दहलीज आई, सलमान से मुसाफा हुआ, अली घर में आए, सलमान ठहरे, अली की आवाज गूंजी, अली की आवाज गूंजी, अली की आवाज गूंजी, सहरा अली भूखा है मुझे रोटी दो, सहरा अली भूखा है मुझे रोटी दो, सहरा अली भूखा है मुझे रोटी दो। जैसे ही ये आवाज सुनी, सलमान एक दिए दे गए। जाने के बाद का यहाँ पे रहने वालों, मुझे आज मैं तुम्हें रात की बात बताता हूँ, पूरी कायनात को जो रोटी दे उसे अली कहते हैं, जो अली को रोटी दे उसे बोलो ना। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ये बच्चा नारा लगाना है, ये वक्त के यजीद से भी एक तीर नहीं है, ये खबर नहीं है कि फाले हैं वक्त के। किसी शायर ने कहा था कि क्या बताऊं आपसे कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा याली कहने के काबिल हो गया। मैं कमी थे महरे मातम, मेरा बेटा उलझी छोड़कर उंगली मेरी हल्के में शामिल हो गया। ये बेटे हमारे याली बोल रहे हैं, ये माँ की कहावत बोल रही है। बैठे हैं ये बच्चे, बैठे हैं लेकिन याली याली बोल रहे हैं। खुदा की कसम अब कुछ लोग तो शर्मा रहे हैं याली बोलने में। बोलो ये इसमें आदम है, पता नहीं किसकी कौन सी खता बस्ती जाए। अच्छा कुछ पढ़े लिखे होते, कुछ बहुत पढ़े लिखे होते। जब कोई नारा लगाता है ना तो ऐसे वाले क्या जरूरत थी नारा लगाने की। अच्छा खत्म होना पढ़ रहे थे, बेकार कर दिया। मौलवी इस्माइल देवबंदी का नाम सुना है आपने? मौलवी इस्माइल ने एक साहब से कहा कि साहब मजलिसों में आए तो हमारे यहाँ देखे खतीब कैसे पढ़ता। उसने कहा क्या है साहब, आपके यहाँ पढ़ते पढ़ते नीचे से लोग नारे हैदरी याली याली नारे रिसालत लगाना शुरू करते हैं, खतीब को पढ़ने ही नहीं देते। ये पागल, ये दीवाने, ये बद्दू अली अली करते हैं, अली अली करते हैं। मौलवी इस्माइल के चेहरे पे हंसी आने के बाद कहा कि मैं इसी बात का तो मातम है, ये पागल होकर अली को नहीं भूले, तुम अच्छे हो अली को भूले। को तो उठा के बोला करो। याली अगर कह दो देर तक दहन महके, याली अगर कह दो देर तक दहन महके,
लो तो सदा बदन महके। या अली अगर कह दो देर तक तहन महके, पल के नाम दब कर लो तो सदा बदन महके। इसलिए 72 गुल चुन के ले गए मौला। इसलिए 72 गुल चुन के ले गए मौला, ताकि उसकी खुशबू से करबला का बन महके। और आपको सलामत रखेगी। तो मैं कहता हूँ ना, या अली कह करो तो हाथ उठा के कहा करो, या अली कहा करो तो हाथ उठा के कहा करो। कुछ लोग कहने के बाद ये कहते अली को बढ़ा रहे। जब नारे तकबीर को हो तो हाथ नहीं उठाते, जब नारे रिसालत हो तो हाथ नहीं उठाते, मगर जब या अली को हो तो हाथ उठाते। हमने कहा हम रसूल के मानने वाले, हम रसूल के चाहने वाले, हम रसूल से हटकर कोई काम नहीं करते। जितने रसूल ने किया हम वही काम करते हैं, जो रसूल ने कहा हम वही मानते। पता नहीं कौन है रसूल के दीवाने, हम रसूल के दीवाने, हम मोहम्मद के चाहने वाले, हम मुहम्मद के मानने वाले, हम मुरस्सिल के मानने वाले, हम मोहम्मद अरबी से हटकर कोई काम ही नहीं करते। जो मेरा मोहम्मद कहता है हम वही मानते हैं। मोहम्मद ने मस्जिद से हुसैन दिया, हमने हुसैन लिया। मोहम्मद ने गदीर से अली दिया, हमने अली लिया। मोहम्मद ने जिसे भगाया हमने उसे भी भगाया, मोहम्मद ने जिसे बुलाया हमने उसे भी बुलाया, मोहम्मद ने जिसे उठाया हमने उसे भी उठाया, मोहम्मद ने जिसे बैठाया उसे भी बिठाया। कभी नारे तकबीर के दोनों हाथ क्यों नहीं उठाते, नारे रिसालत के दोनों हाथ क्यों उठाते? का याद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहलाया मोहम्मद ने हाथ नहीं उठाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोहम्मद ने हाथ नहीं उठाया। मेरे मदीने के मैदान में दोनों हाथ नहीं उठाया। अगर मदीने के मैदान में नबी ना हाथ उठाते तो नबी के शिया हाथ ना उठाते। सलामत रहो। सलामत रहो। ठीक है, दलील मजबूत है कि नहीं? नबी ने दलील को उठाया कि नहीं? बोलो बोलो, मैं अकेले बोल रहा हूँ भाई। उठाया कि नहीं उठाया? तो फिर ये हाथ उठाना अली के नारे पर सुन्नत रसूल है। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, फिर हाथ उठाना तकलीफ के नाकाम में इतना उठाया कि खुद छुप गए। और अली को दिखाया और बताया जब मैं ना रहूं तो अली को मानना, क्योंकि सलूनी का दावा करने वाले हैं। अब एक जुमला सुनना, फातिमा किसके लिए नमूना अमल? औरतों के लिए। बोलिए, फातिमा किसके लिए नमूना अमल? पूरा मजमा बोले, फातिमा किसके लिए नमूना अमल? नबी किसके लिए नमूना अमल? मर्दों के लिए। ठीक है, मर्दों के लिए। फिर कह रहा हूं मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं। मर्दों के लिए नमूना अमल है कौन? नबी। औरतों के लिए नमूना अमल हाय 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 हाय। एक जुमला सुना, एक जुमला अली का पढ़ूं और एक जुमला फातिमा ज़हरा का पढ़ूं। अब मैं मोहब्बत देखना चाहता हूं। कायनात का अमीर फरमाता है, याद रखना अपने घर की बेटियों को बचपन से ही इतने पर्दे की आदत डाल दो कि बड़े होकर उन्हें बेपर्दगी से नफरत हो जाए। क्यों का याद रखना, जो चीजें कीमती होती हैं वो पर्दे में होती हैं। अल्लाह जाने आप कैसे सुनेंगे। जो चीजें कीमती होती हैं वो पर्दे में होती है। का मतलब काबा कीमती है, पर्दे में है। कुरान कीमती है, पर्दे में है। मेरा इमाम कीमती है, पर्दे में है। औरत कीमती है, पर्दे में है। अगर जुमला कहूं, जिन लोगों के घरों ने अपने घर की औरतों को कीमती
जानते हो किस किस चीजों का पर्दा? अगर किसी का माँ बाप मर जाए तो शफकत का पर्दा करो, किसी के साथ खाना नहीं है तो छुपा कर खाने का पर्दा करो, इसीलिए रमजान में है होटलों पर काले पर्दे डाल दो ताकि एहतराम बाकी रह जाए। ये है पर्दा, जो चीजें कीमती वो पर्दे में। अब मौला की हदीस पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो, शर्दी भाई आज की बात है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कायनात के अमीर का जुमला पढ़ लिया। मौला फरमाते हैं वालिदैन को देखकर, याद रखना जिनके घर की बेटियां सर उठा के चलती हैं उनके वालिदैन सर झुका के चलते हैं। अरे मैं मौला का जुमला पढ़ने जा रहा हूँ उनके चाहने वालों के बीच में, इससे बड़ा अगर जुमला किसी के इमाम ने कहा होता तो मैं खामोश हो जाता। मौला फरमाते हैं याद रखना जिनके घर की बेटियां सर उठा के चलती हैं उनके वालिदैन सर झुका के चलते हैं, और जिनके घर की बेटियां सर झुका के चलती हैं उनके वालिदैन सर उठा के चलते हैं। अब एक जुमला लिखा हुआ, अब फर्क देखिएगा फातिमा का। किसी ने पूछा बीबी ये बताइए कि आपकी कनीजों को कैसा होना चाहिए? जो पर्दे में रहेगी वही ना पर्दा बताएगी, जो पर्दे के बाहर है वो पर्दा थोड़ी बताएगी। मौला आपको सलामत रखे। आपने मेरी खिताबत नीचे से की है, कितना सही मजमा है, जो आगे के काफिया समझ रहा है। देखते मौला आपको सलामत रखे, ठीक है। तो जो मकान में रहेगी वो बताएगी ना पर्दा की, जो मैदान में रहेगी वो बताएगी। भाई तवज्जो फरमा दे। किसी ने फातिमा से पूछा बीबी ये बताइए कि आपकी कनीज को कैसा होना चाहिए, आपकी कनीज को कैसा होना चाहिए? अगर आज की खातून से पूछ लेता तो वो बताती कि उसकी कनीज को ब्यूटी पार्लर में होना चाहिए, बेहतरीन मेकअप में होना चाहिए, बेहतरीन झुमके में होना चाहिए, बेहतरीन कपड़े में होना चाहिए। मगर वो मालिकन थी, वो औरतों के लिए नमूना अमल थी। फातिमा से पूछा गया आपकी कनीजों को कैसा होना चाहिए, तो फातिमा ज़हरा ने फरमाया मेरी कनीजों को गैरतदार होना चाहिए। अब एक जुमला कहने जा रहा हूँ, और हयादार होना चाहिए। फरमाया दीदी दोनों में फर्क क्या है? गैरत किसी के पास जाने नहीं देती, हया किसी को पास आने नहीं देती। अब जुमला सुनना फातिमा ज़हरा का, और दुआ में मुझे याद रखना मजलिस तमाम होने जा रही है। फरमाया दीदी मतलब का हमारी कनीजों को चांद की तरह नहीं होना चाहिए, हमारी कनीजों को सूरज की तरह होना चाहिए। पूछने वाले ने कहा दीदी वो कैसे? का याद रखना मेरी कनीजों को चांद की तरह नहीं होना चाहिए, जिन्हें हर आंखें देख ले, मेरी कनीजों को सूरज की तरह होना चाहिए, जिन्हें देखने से पहले ही निगाहें छूट जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है कोई बात मान देगा? कोई बता सकता है? आपने देखा कानून है खुदा की कसम। अब लोग समझ रहे औरतों की इज्जत नहीं, अगर फातिमा ना होती तो औरत की इज्जत कौन बताता? अब एक जुमला कह रहा हूँ, जो लोग ये समझते हैं ना कि पर्दा मायूब है, सुनना आखिरी जुमला है, पर्दा मायूब है। फातिमा ने बताया अगर पर्दा मायूब होता तो कभी फातिमा के काबे का गिलाफ न बनता। बहुत बड़ी बात कही है, अगर पर्दा मायूब होता तो कभी फातिमा के काबे का गिलाफ न बनता। पहुंचे बीबी के बाद, बीबी दुनिया में इतनी ताकत नहीं, सूरज में इतनी ताकत नहीं कि आपका चेहरा देख ले, तो आप पर्दा क्यों कर रही हैं? कभी जानता है ना कि अली मेरा कपो है, मैं अली की कपो हूँ। हमने कहा अच्छा, वो देख एक मर्द मैदान, वो देख अली को, जब जाके उसे पूछ कि उसका पोता सैयद सज्जाद जब हाथ धुलता है तो जवाहरात बनते हैं। इतना बड़ा अली यहूदी के पास में काम क्यों कर रहा है? हम एक मतलब हाथों को जोड़े हुए अली के पास पहुंचे। ए माने कुन, ए महबर दिल, ए बादशाह हक, ए नब्बाज शरा, ए मोदी शराब, ए सौदे कुतून, ए कमाल रसूल, ए खतीब मिम्बर सरूरी, ए बता तो बलागत के मालिक, ए आदम की दुआ पूरी कराने वाले, ए मुंह की कस्ती को छुपकी के पार लगाने वाले, ए याकूब के अंधे कुएं में कस्ते चरागा फरमाने वाले, ए यूनुस को कस्ते माही से निजात दिलाने वाले, ए मूसा के शाने को पकड़ के दरियाए नील पार कराने वाले, ए ईसा को मुर्दों का जिंदों का हुनर करने का सलीका बताने वाले, ए
7 बजे जाना है। ऐसा ना हो कि पूरे जीवन एक तरफ पढ़े और मैं अकेले 2 बैठक पढ़ूं। जल्दी समझोगे तो जल्दी मजलिस तमाम हो जाएगी। एक बार सलावत पढ़िएगा पर मोहम्मद वाले अली और फातिमा एक दूसरे की तो वो है, ये फेसबुक वाला मैसेज नहीं है, आप कीजिएगा। चैट वाला मैसेज नहीं है, व्हाट्सएप वाला। ये तो नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ रिश्ता है। और ये पहला ऐसा रिश्ता है जो 2 बार पढ़ा गया, एक बार अर्श पर, एक बार फर्श पे पढ़ा गया। ये ऐसा रिश्ता है, तवज्जो बनाइएगा, जो मैं करने जा रहा हूँ। कफो दोनों बराबर है। अब जो जवाब अली का है, समझदारों समझना, वही जवाब ज़हरा का होना चाहिए ना। अली से जवाब दिया हूँ, झूमते झूमते ज़हरा की तहलील से गुजरे, पर मैं कहाँ जाना है? जवाब अली से मिल गया, का बतूल से मिले थे। हमने कहने क्योंकि मुझे मालूम है तो जवाब अली का था, वही बतूल का होगा। तो आप थोड़ा सा मेरे चाहने वालों तक तो पैगाम पहुंचाते। हमने कहा बीबी आप भी लब खोले, कुरान भी लब खोले। आप देखना चाहते हैं कुरान कैसे बोलता है? बीबी ने फरमाया याद रखना, जो जवाब अली का है वही जवाब बतूल का होगा। हमने कहा मतलब का अली काम इसलिए कर रहा है ताकि कल होकर कोई चाहने वाला किसी के यहाँ काम करे तो वो फख्र से कहे हम सुन्नत अली अदा कर रहे हैं। अरे ज़हरा की चादर अपने लिए नहीं ओढ़ रही है, अपनी कलीसों के लिए ओढ़ रही है, ताकि कल होकर गर्मी में ओढ़ना पड़े तो फख्र से कह दे हम सुन्नत बतूल अदा कर रहे हैं। दो तरीके के नारे लगाए हैं, सिर्फ बखार से भी मारा, अली के नाम से भी मारा। तो फरमाया आपने मैं कुछ अर्ज करने जा रहा हूँ, तो बतूल का जवाब दिया तो अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, कर रही हूँ पता कबीर अपने चाहने वालियों के लिए कर रही हूँ। कल होकर अगर ओढ़ना पड़ जाए तो फख्र से कहें अपने लिए थोड़ी ओढ़ रही हूँ, सुन्नत बतूल अदा कर रही हूँ। याद रखना मेरी बहनों, एक पैगाम दे रहा हूँ तुम्हें, तुम अपने नकाब में हो, जमाना अपनी औकात में रहेगा। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपके सामने। तुम अपने पंचम अब्बास की जानिब से ये मैसेज है आपकी तरफ, तुम अपने नकाब में हो, जमाना अपनी औकात में रहेगा। इमाम अस्करी फरमाते हैं जब कोई औरत घर से बिना पर्दा बाहर निकलती है तो वो लड़की नहीं रह जाती, गंदी निगाहों के लिए खिलौना बन जाती है। हाय 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 हाय, जाओ शुक्रिया की अदा करो कि तुम पर्दे में हो। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना मैं चाहता ही हूँ कि आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाएं। हमने कहा बिल्कुल आएंगे, हमने कहा बिल्कुल आएंगे। हमने कहा ठीक है, ऊबर ऊबर का जमाना है, हम करके आ जाएंगे, आप टाइम करिए मौलाना तो करिएगा, मेरे पास ऑटो है, फॉर्च्यूनर है, हम भेजेंगे अपने मौलाना को लेने के लिए। हमने कहा ठीक है साहब शुक्रिया। गाड़ी आगे लगी, हम बैठे, हम जैसे उनके घर पहुंचे, सीढ़ी पे चलने लगे, मेरे मौलाना दलील कर रहे हैं, आइए इधर आइए, हम आपको लिफ्ट ले चलेंगे, 1.5 लाख की लिफ्ट लगाई है। हमने कहा अच्छा। अब वो 12वें माले पे ले गए और बैठाना था पहले वाले पर। हमने कहा 12वें पे क्यों लाए? हम दिखाना चाहते थे मेरी यहाँ तक हिम्मत है, हमने यहाँ तक बनाया है। हमने कहा अच्छा ठीक नीचे किया, लेकर आए। हम जैसे ही सोफे पे बैठे, हमने कहा आप अब तक इज्जत दे रहे थे, अब यूं उठा क्यों दिया? तो मौलाना उठा के फिर बैठा रहा हूँ। हमने क्यों? अब ये देखिए सोफा लग्जरी है, सोफा लग्जरी है। हमने कहा माशाल्लाह का मौलाना 8 लाख रुपए का लिया है और यहाँ से नहीं बहुत बड़ी जगह से मंगवाया है। हमने कहा मौला आपको जगह खैर दे। उसके बाद जैसे ही बैठे तो उन्होंने कहा भैया मौलाना है, चाय वाय लगाओ, वाय चाय वाय लगाओ, चाय के साथ नाश्ता वाश्ता लगाओ, जैसे बातचीत जुबान उबान है ना, हरकत वरकत, रोटी वोटी चावल वावल, ठीक है ना, इधर के लगे तो काट भाई लगाओ जल्दी से मौलाना के लिए। जल्दी लगाए तो चांदी की प्याले में चाय आई,
चांदी की कटलरी थी। जैसे ही हमने किया पीते पीते हमने एक बार घर देखा। देखने के बाद कहा सुल्तान भाई अल्लाह करे चाय के साथ साथ अल्लाह आपकी गुर्बत दूर कर दे। कहते ना वैसे उनके आ गए जो अब तक अपनी दौलत दिखा रहे थे, वो अब गुस्से में आ गए, फॉर्म में आ गए सुल्तान भाई। उनका बस नहीं चला कि गर्दन उतार ले। हाय हाय मौलाना ये क्या कह दिया आपने? मैं तो आपको समझता था बड़े अच्छे खतीब हैं तो अक्लमंद भी होंगे। मैंने दावत कर दिया कि मौलाना मेरे घर आए, मगर आप ये क्या कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी गुर्बत दूर कर दे? हमने कहा सही कह रहा हूँ। कह रहे क्यों? अल्लाह का दिया हुआ बेहतरीन घर है, बेहतरीन गाड़ी है, बेहतरीन राटो है, बेहतरीन पराठो है, बेहतरीन फॉर्चूनर है, बेहतरीन सोफा है, अल्लाह का दिया हुआ शीश महल घर है, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी आप कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी गरीबी दूर कर दे? हमने कहा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ घर में देखा मगर कहीं टंगा हुआ सोना नहीं देखा। अल्लाह करे मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ आप समझ गए तो घर तक मजलिस चली जाएगी। हमने कहा मैंने सब कुछ घर में देखा मगर घर में कहीं लटका हुआ सोना नहीं देखा, मैंने कहीं लटके हुए हीरे जवाहरात नहीं देखे। हाय हाय मौलाना फातिहा पढ़ लीजिए अपने गुनाह पर। हमने कहा क्यों? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोना भी कोई दिखाने की चीज होती है। जो चीज कीमती होती है वो लॉकर में रखी जाती है, जो चीज कीमती होती है वो हिफाजत में रखी जाती है। जुमला पलट रहा हूँ, जो चीज कीमती होती है वो पर्दे में रखी जाती है, जो चीज कीमती होती है वो पर्दे में रखी जाती है। सोना कीमती था इसलिए पर्दे में रखा। अब समझे हमारी घर की औरतें कीमती है इसलिए पर्दे में है। ठीक है, अब जो चीज कीमती थी वो चीज गुर्दे में है। अब जिसके यहाँ पर्दा देखना समझ लेना इसके घर में कीमती चीज है, और जिसके घर में पर्दा ना हो समझ लेना जी मैदान में कि वो चीज कीमती नहीं है। ये लाइव वाले और वीडियो वाले जो है ना, इनसे जो गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा अपना मोबाइल अगर कैमरा थोड़ा थोड़ा बंद रखेंगे, क्योंकि एक हाथ से तो ऐसे उठाए हैं और दूसरे हाथ में तो ऊपर से गुटखा खाए हुए हैं और एक फिर बोल भी नहीं पा रहे। एक बार सलवात पढ़िएगा पर मोहम्मद वाले बता दो भैया पेपर में सिर्फ एक ही फोटो आनी है, कोई एक ले लो दूर से खड़े होकर, सब एक दूसरे को फॉरवर्ड कर लेना, क्योंकि यहाँ तो छूटे भी न्यूज फॉरवर्ड हो जाती हैं तो फोटो सच्ची भी फॉरवर्ड हो जाएगी। एक बार सलवात पढ़ो मोहम्मद फोटो तो लोग दूसरे देखो जितना आदमी खूबसूरत नहीं होता है उससे ज्यादा खूबसूरत उसकी फोटो फेसबुक पे होती है, और जितना इंसान खूबसूरत नहीं होता है उससे ज्यादा आधार कार्ड में दिखता है। एक बार सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले शुक्रिया। तो मैं अर्ज ये करा था 5 मिनट का पढ़ू ना, बॉम्बे की लैंग्वेज है, कोई जो पढ़ने का या नहीं पढ़ने का, पढ़ने का या नहीं पढ़ने का? पढ़िए पढ़ू 5 मिनट ठीक है। एक बार सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो थके हुए हैं उनसे माजरत, वो मुझे बर्दाश्त कर ले, मुझे लाज समझ कर, लेकिन जो नहीं थके हुए हैं वो थोड़ा सा मुझे सुनने की आदत है। ठीक है, ये आखिरी मजलिस है 5 मजालिस की, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर पता नहीं कब आपसे मुलाकात हो। तो मैं अर्ज कर रहा था आपके सामने कि कीमती है पर्दे में है। अगर कीमती ना होती तो आज बाजार में होती। फातिमा कीमती थी इसलिए घर में थी। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कहीं लेके जा रहा हूँ। जो चीजें कीमती होंगी वो मकान में होगी, और जो कीमती ना होगी वो मैदान में होगी, वो मार्केट में होगी, वो दुकानों में होंगी, वो मकानों में होंगी। तो कीमती होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर औरत है तो कमजोर है,
कभी कमजोर ना समझे अपने आप को, क्योंकि ज़हरा ने ताकत तुम्हें बख्शी है। अगर औरत कमजोर होती, बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ शहजादी की अदा से ये जुमला, अगर औरत कमजोर होती तो हुसैन करबला के बाद ज़ैनब को नाज़े अली ना बनाते। अरे मैंने बहुत बड़ी बात कही है, अगर औरत कमजोर होती तो करबला के बाद हुसैन ज़ैनब को अब्बास ना बनाते। अरे मैंने कितनी बड़ी बात कही है, ज़ैनब को नाज़े अली बनाना इस बात की दलील है कि औरत कमजोर नहीं है। तुम अपना हक लेने की चली जाओ, चाहे किसी मौलवी के पास क्यों ना हो, तुम अपना हक लेने की चली जाओ, चाहे किसी दरबार में क्यों ना हो। मैंने गलत किया था ना आपके सामने कि ज़हरा फिजक लेने नहीं गई थी, लानत वाला तोहफा रखा था, ज़हरा वो पहुंचाने गई थी। आप 2 मिनट में समझिए कि फिजक क्या है, कितना बड़ा दरबार है। किसी ने इमाम से पूछा था मौला आप फिजक ले लेते, इमाम ने फरमाया तू क्या तेरा बाप भी नहीं दे सकता। मौला क्यों कहा, जहाँ तू बैठता है ना वो भी मेरी दादी का हक है। अरे अपना बोलोगे तो कब बोलोगे यार, वो भी हक आज पढ़ना बताना बहुत जरूरी था। जब ज़हरा गई है ना तो बताया है कि डरो नहीं, तुम किसी से कम नहीं हो, हक हो तो डटी रहो, क्योंकि औरत है ना कमजोर थोड़ी है, औरत है, कुव्वत भी है औरत की। हक लेना हो तो चली जाओ, चाहे दरबार में जाना पड़े। ज़हरा आई और अपना हक मांगे, का मेरा हक दे, बताइए क्यों। जब फातिमा ज़हरा का मीरास था, ये रसूल को मिला था और रसूल ने अपनी जिंदगी में फातिमा को दे दिया था। इतना बड़ा था कि कई हजार वर्कर फिजक में काम करते थे, कई हजार लोगों की रोटी करती थी। और जब लोग आए गर्म किया तो फातिमा ज़हरा के वर्करों को माजूर कर दिया कि जाओ अब काम तुम्हारा खत्म हो। सारे वर्कर फातिमा के पास आए, अली के पास आए, कहने लगे मौला उन लोगों ने हमें हटा दिया है। क्यों? कहिए कि अब फातिमा का हक नहीं है। फातिमा ने बुर्का पहना और पहनने के बाद अली को लिया और लेने के बाद फिजक लेने आई और लेने के आने के बाद कहा दे मेरा फिजक। उसने कहा बीवी आप है कौन? तो फरमाया बस इतना समझ ले मैं तत्हीर हूँ तू नजीस है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तत्हीर हूँ तू रिस्क है, मैं तत्हीर हूँ तू नजाकत है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पाकीज़गी हूँ तू गंदगी है, मैं अल्लाह की बंदगी हूँ तू अल्लाह की गंदगी है। अरे मैं कुछ कहने जा रहा हूँ आपके सामने, मुझे पहचान में फातिमा हूँ का हफला गवाह लाओ। अल्लाह अकबर, फातिमा से मांगा जा रहा है गवाही। अब्दुल्ला नजर करने जा रहा हूँ, जरा बाजू को बेदार कीजिएगा। फातिमा से मांगा जा रहा है गवाही। फातिमा ने फरमाया ये अली है, ये हसनैन है, ये शौहर है, गवाही दे देंगे, ये बच्चे हैं गवाही दे देंगे, उम्मे अमन लाई गई क्या गवाही दे देंगी। खुदा की कसम ज़हरा ने एक सूरा पढ़ा और सूरा पढ़ने के बाद अपना फिजक साबित किया। तीसरे पारे के चौथे सूरे को उठाया, लाओ कोई हाफिज खड़ा करो, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ल समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहार फुज्जरत व इज़ल कुबूर बुतरत अलमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु का बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़ा फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक व कल्लमक तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन व किरामन कातिबीन। तीसरे पारे के चौथे सूरे को जिन्हें तलवार सितम में झाया और ढाने के बाद मुंह फेरा और मुंह फेरने के बाद जब तू ये कह रहा है ना नबी जानशीन बनता है ना बनाता है, मैं भी पूरे कलेजे की ताकत को समझ रहा हूँ, आप भी अपने पूरे कलेजे की ताकत को समझिएगा। बीबी फरमाती है तू ये कह रहा था कि ना नबी जानशीन बनता है ना बनाता है, सुन मैं बताती हूँ, क्योंकि ज़हरा सिद्दीक़ा है, ज़हरा ताहिरा है, ज़हरा आसिया है, ज़हरा मुअज़्ज़ज़ा है, ज़हरा मुअज़्ज़ज़ा है, ज़हरा बतूल है, ज़हरा फातिमा है, ज़हरा बतूल है, ज़हरा अपने बाप की माँ है, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। तू ये कह रहा था ना नबी जानशीन बनता है ना बनाता है, सुन मैं बताती हूँ। अल्लाह ने आदम को बनाया, आदम ने शीश को बनाया, शीश ने मुहम्मद को बनाया, मुहम्मद ने मसूह को बनाया, मसूह ने उमैशा को बनाया, उमैशा ने मर्शिया को बनाया, मर्शिया ने मशानी को बनाया, मशानी के लमक को बनाया, लमक ने नूह को बनाया, नूह ने शाम को बनाया, शाम ने याफिक को बनाया, याफिक ने काशी को बनाया, काशीर ने शादी को बनाया, शादी ने पाहुर को बनाया, पाहुर ने इमरान को बनाया, इमरान ने तारिक को बनाया, तारिक ने इब्राहिम को बनाया, इब्राहिम ने इस्माइल को बनाया, इस्माइल ने इसहाक को बनाया, इसहाक ने याकूब को बनाया, याकूब ने यूसुफ को बनाया, यूसुफ ने सुलेमान को बनाया, सुलेमान ने शुएब को बनाया, शुएब ने मूसा बिन नून को बनाया, मूसा ने मूसा को बनाया, मूसा ने हारून को बनाया, हारून ने इस्माइल को बनाया, इस्माइल ने काबिल
ने अली नकी को बनाया, अली नकी ने हसन अस्करी को बनाया, अस्करी को बनाने के बाद का दुनिया वाले याद रखना, अस्करी ने वक्त मोहम्मद को बनाया, जैसे ही ज़हरा ने बताया, आवाज़ किबरियाई आई, आवाज़ किबरियाई आई, ज़हरा कहाँ तक बनाती चली जाओगी और कहाँ तक मैं बनाता चला जाऊंगा। आज अल्लाह का वादा है, जब तक तेरा कायम रहेगा मेरा जियादा है। सारी दुनिया को इसी नाम पे पढ़ते एक ही नाम ये दुनिया में उभरते देखा, सारी दुनिया को इसी नाम पे मरते देखा। यारी तू ही वो साजिद है कि एक दिन हमने, यारी तू ही वो साजिद है कि एक दिन हमने सजदा सूरज को तेरे पाँव पे लगते देखा। कहाँ तक बनाती चली जाओगी और मैं अल्लाह कहाँ तक बनाता चला जाऊंगा। आज अल्लाह का वादा है, एक मकरू के सामने, एक मनहूस के सामने, कि जब तक तेरा कायम रहेगा अल्लाह का दिया कायम रहेगा। और अल्लाह का शुक्र है आज भी कायम के सबसे में दुनिया कायम है। ये मेरा वादा है सारा, तुम जाओ लानत पहुंचाने आई थी। अब अल्लाह का वादा है जब तक लानत रहेगी तब तक बरसती रहेगी। ये मेरा वादा है सारा, आप न घबराए, ये मेरा वादा है। सहरा तुमसे अल्लाह का वादा है। सहरा ने लानत पहुंचाया, वापस आई। ये सहरा है और आप सहरा की दुआ है। जितनी देर तक मैंने सहरा बताया सिर्फ ये फजीलत नहीं है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं सहरा को। सहरा वो पाक है मोहम्मद के घराने का कि जिसमें अली जैसा गुलाब रहता है, हसन जैसे फूल रहते हैं, हसनैन जैसे फूल बनते हैं। ज़हरा औरतों के लिए नमूने अमल है। मगर मेरे अजीजों, ज़हरा वापस आई है। अल्लाह न करे कि कोई मेरी बहन किसी जगह हक लेने जाए तो जवान जाए मगर वापस पलटे, तो अल्लाह न करे कोई सही पलटे। एक बात दिल की बताऊं आपको, मैं 4 दिन से अपने आप को रोक रहा था कि मैं वो मसाइब न पढ़ूं, मैं ज़हरा की शहादत न पढ़ूं, मैं ज़हरा की शहादत न पढ़ूं। मगर आज वो दिन आ ही गया कि शबे शहादत फातिमा ज़हरा है। लो अज़ारा रो, अब तो लाइट भी बंद कर दी गई ना।
क्यों? क्योंकि मर्दों में एक अलम आएगा और जनाब मुस्लिम का ताबूत आएगा, मगर हमारी माँ बहनों के बीच में फातिमा ज़हरा का जनाजा आएगा। तुम्हें खुदाए हुसैन का वास्ता आज अपने आप अपने आवाज को न दबाना। आज मुझे पहले लेना और तुम रो लेना, क्योंकि अल्लाह करे कि मेरे पढ़ते पढ़ते फातिमा ज़हरा के मसाया मुझे मौत आ जाए, क्योंकि इससे अच्छी मौत नहीं हो सकती कि मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, तुम सुनते सुनते मर जाओ। आज जल्दी मत करना, मुझे आराम से फातिमा ज़हरा के मसाया पढ़ने देना। कितना बड़ा मजमा आया है, मेरी निगाहों के सामने खड़ा हुआ है ये मजमा, लाताबाद मजमा मेरे सामने है। मेरे भाइयों में तुम्हें बताऊं, ताबूत लाने में जल्दी मत करना, क्योंकि जानते हो जिसके घर का जनाजा होता है ना, जनाजे में 3 तरीके के लोग आते हैं। पहले समझो, एक वो होता है जिसके घर का जनाजा हो, एक वो होता है जो मोहल्ले का हो, एक वो होता है जो दूर का रिश्तेदार हो। मगर जब जनाजा उठने के लिए तैयार होता है ना, तो तीनों की कैफियतें अलग अलग होती हैं। जिसके घर का जनाजा होता है वो जनाजे को पकड़े रहता है, मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ। मगर जो अदादारों मोहल्ले का होता है ना, वो जनाजे को देख के सिर्फ खड़ा रहता है, सोचता है जनाजा उठ जाए तो हम घर चले जाएं। और जो रिश्तेदार आता है ना, वो दूर से खड़ा होकर जनाजे के जाने का इंतजार करता है। तुम न दूर के रिश्तेदार हो, न मोहल्ले के पड़ोसी हो, तुम फातिमा के दुलारे हो, तुम फातिमा के प्यारे हो। वैसे मातम करना जैसे हसनैन ने मातम किया है, वैसे मातम करना जैसे अली ने मातम किया है। अब आगाज करो मसायब का, संभालना अपने आप को। मगर जब रोना तो इतनी जोर से रोना, बीच में नहीं कहूँगा रो रो रो, मगर जब रोना तो खुदाए हुसैन का वास्ता इतनी जोर से रोना कि तुम्हारे रोने की आवाज सड़क तक जाए, तो मुसाफिर ठहर के पूछे, लगता है कि इनका कोई अपना मर गया है। इतनी जोर से रोना, लो मसायब का आवाज करो, संभालना अपने आप को। मैं देखना चाहता हूँ किसमें कितनी ताकत है। मैं पढ़ सकता हूँ या आप सुन सकते हो। आवाज बुलंद हो गई, अब मसायब सुनो। अदादारों, बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं मसायब बचाऊं, मगर आज कोशिश कर रहा हूँ कि फातिमा की शहादत पढ़ लूं, मगर शहादत नहीं पढ़ पाऊंगा, सिर्फ ज़हरा की वसीयत पढ़ूंगा कि जो ज़हरा ने अली से क्या क्या वसीयत की। यहाँ तक आपने सुना कि फातिमा जब वो दीवार के बीच में आ गई। ए अज़ादारों, मगर एक जुमला बताऊं, दरवाजा लकड़ी का था, तो फातिमा को कीले घुसी है ना कमर में। समझ गए तो कभी तक मातम करते जाओगे, मुझे नहीं पता कौन कैसे मातम करेगा, मगर आज शर्माना नहीं कि कौन कैसे मातम करेगा। तुम मुझे सुन के मातम न करना के लिए बात छत्र में बताया जा रहा है, बल्कि ऐसे मातम करना कि कोने में खड़े होकर हसन मातम कर रहे होंगे, कोने में खड़े होकर हुसैन मातम कर रहे होंगे, पता नहीं किसके बीच में बैठ कर आज अली मातम कर रहे होंगे। अगर आज तुम्हें फातिमा का पुरसा देना है ना, तो आमादा हो जाओ थोड़ा सा रोने के लिए। मुझे सुन के मातम मत करना, मैं देखूंगा कि कहाँ तुम सुन सकते हो, मैं वहीं पे खामोश हो जाऊंगा। अगर अपने आप को संभालो, मगर आज किस्तियों में मातम मत करो, क्योंकि जानते हो फातिमा की पहली वसीयत अली मुझे रात की तारीखी में उठाना। अदादारों, जानते हो फातिमा पे जलता हुआ दरवाजा किया है, लकड़ी की दरवाजे में अदादारों कीले लोहे की है, जैसा फातिमा का बदन है। अदादारों, एक तो कील फातिमा के कमर में घुसी, फातिमा की आवाज आई, या अली मेरी मदद को आओ। अदादारों, फातिमा बेहोश हो गई, जब होश में आई तो एक मतलब आवाज दी, फातिमा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, फातिमा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। दूसरी आवाज दी, फातिमा आईना आईना। अली इब्ने अबी तालिब फरमाया, लोग अली को गले में रस्सी डाल के ले गए हैं। अदादारों, फातिमा दहलीज पे आई और कहा, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो, वरना ज़हरा अपने सर के बाल परेशान कर देगी।
जाने लगी। अदादारों दरवाजा गिरा फातिमा ज़हरा पर। अब करूँ बताया चीखे मार के लो लेना हक गिरिया हो जाए। अदादारों फातिमा ज़हरा पे जलता हुआ दरवाजा गिरा। तारीख बताती है उस दिन से बतूल ने दाएं हाथ से तस्वीर अली घर में आए। काटे का फातिमा बाएं हाथ से तस्वीर पढ़ रही है। अली बैठ गए तो फातिमा ने मसाया तमाम कर दिया ना तस्वीर। अली बात में बैठ के कहते बतूल आपको पता है तस्वीर दाएं हाथ से पढ़ो आप बाएं हाथ से पढ़ती हो। एक मतलब बतूल ने कहा अली मुझे उठाओ उठा के बिठाओ बिठाया फरमाया अली मैं बताना नहीं चाहती थी मगर बताती हूँ अली जब से मुझे झलका हुआ दरवाजा गिरा है ना यानी मेरा बायां हाथ नहीं मिलता। अगर इतना सुनना था कि अली को मातम करना शुरू किया। अगर मातम करना है क्योंकि आज हुसैन को पुरसा देना है। आज मातम करो क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन को पुरसा देना है। तारीफ बताती है फातिमा इस दुनिया से जा रही है। अभी सुनो एक वसीयत ऐसी है जो फातिमा ने बैठ के नहीं किया। आगे हो गए अली को देखा अली 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 बतूल जा रही है। अली तुम गलती हो तो मुझे माफ करना। अभी सहारे मार मार के रहोगे अली। अब आवाज हो गया है बताया का संभालना अपने आप को। जो कमजोर थी के लोग रहते हो मुझे माफ कर देगा। मगर आज जनाजा बतूल का सिस्टियों में नहीं उठना चाहिए। आज बिछियों में बतूल का जनाजा उठना चाहिए। अली ज़हरा जा रही है। अली अली मेरी कुछ वसीयतें बीबी बयान करें। अली मेरा जनाजे में फला फला को मत आने देना। अली मेरा जनाजा शक की तारीख में उठाना। अली मेरा जनाजा रातों में उठाना। एक जुमला अदादारों एक चादर और 40 कब्रें। एक चादर में बतूल को छुपाया है 40 कब्रों में बतूल को छुपाया है। अली ने दफनाया नहीं बतूल को अली ने छुपाया है। क्योंकि कब्र दफनाई जाती तो एक बनाई जाती। अली ने 40 कब्र बताई है। मोहम्मद की बेटी को अली ने दफनाया नहीं है मातम कर लेना। अली ने बतूल को मिट्टी में छुपाया है। समझ गए तो बहुत मातम करोगे। अली ने बतूल को मिट्टी में छुपाया है। उसके बाद अदादारों बतूल की वसीयत शुरू हुई। हमारा अली फला फला को मेरे जनाजे में बता दे। ठीक है अली मैं जा रही हूँ। अली मेरा नमाज़े जनाजा आप पढ़ाइएगा। अली मुझे कब्र में तुम करना। अली मुझे कब्र में तुम देना। अली मुझे कब्र में तुम उतारना। अली मुझे खुशी में तुम देना। तारीख बताती है अच्छा ठीक है। अब तक जो बतूल लेती थी ना अब बतूल कहती अली मुझे उठाओ जो वसीयत करने जा रही हूँ। फरमाया क्यों का अली मेरी कमर की हड्डी नहीं टूटी मेरी पसली टूटी है। अली अब पता नहीं अगर मैंने बता दिया इन दोनों की ताकत तो पता नहीं कौन मर जाएगा। मगर मैं देखना चाहता हूँ कौन आज फातिमा को पुरसा देने के लिए आया है। जानते हो कोई डॉक्टर बैठा है कोई डॉक्टर बैठा है तो मर जाएगा खुदा की कसम। अगर डॉक्टर न बैठा हो तो बाद मस्जिद अपने पॉकेट से मोबाइल निकालना किसी अपने दोस्त को फोन करके पूछना कि ये बताओ कि जब किसी के बदन की हड्डी टूट जाए कमर की और किसी की पसली टूट जाए तो दर्द कितना होता है। तो सामने वाला डॉक्टर तुमसे कंफर्म करेगा अल्लाह करे कमर की हड्डी टूटी हुई पसली न टूटी हो। आपसे पूछे तो क्यों भैया तो वो बताएगा कि कमर की हड्डी टूटने में और पसली टूटने में फर्क होता है। मैं देखना चाहता हूँ कौन आज बुजुर्ग को मातम करने आया है। पसली टूटती है और अगर हड्डी टूट जाए तो फर्क होता है। फर्क क्या होता है तो याद रखना जब इंसान के कमर की हड्डी टूटती है ना तो इंसान के उठने और बैठने में कम होता है। मगर अल्लाह न करे किसी की पसली टूटे। अगर पसली टूट जाए ना तो जब जब इंसान उठता बैठता नहीं
अली अरे मैं जा रही हूँ अली एक सदमा के साथ अली मैं एक सदमा के साथ हूँ अली का बुलूल बताया तो सही एक मतलब पतूल लूट के बैठी कमर पे हाथ रखी कहती के अली मुसलमानों ने मेरा मौसम मार दिया मुसलमानों ने मेरा मौसम मार दिया अली 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 मुसलमानों ने मेरा मौसम शहीद कर दिया सहारा ऊंची बैठी उसके बाद एक मतलब आखिरी रखिए तमाम होने जा रही है बुलाएगा फरमाया अली मेरे बाद आप शादी कर लीजिएगा मगर अली मेरे हुसैन से दूर न सोइएगा फरमाया क्यों मेरे करबला बेटे को प्यास बहुत लगती है मेरा हुसैन माना चलेगा मेरा हुसैन रातों को छुट्टियां अंधेरे में मगर बड़े आराम से चूमना फातिमा की पतली टूटी है